Good morning, student. Welcome in chemistry class. In today class, we will discuss about the anomalous behavior of lithium. Okay. As I have told you that in periodic table, in second period, first member of group, first member of group has some different property from the other member of group. Some different property from the other member of group. In today class, we will discuss the lithium about the lithium, its anomalous behavior, why it's so anomalous behavior, and what are the anomalous behaviors. Okay, and you can contrast or you can compare the other elements of other groups, such like the B beryllium from the second group, boron from the third group, and carbon from the fourth group, nitrogen from the fifth group, oxygen from the sixth group, and fluorine from the seventh group. All these elements show anomalous behavior due to their size, due to their electronegativity, due to absence of d orbital. And similarly, you can compare all these elements with the lithium's anomalous behavior. Okay, this way you can remember the properties of other elements. Students, so let's start anomalous behavior of lithium. Why lithium show such anomalous behavior? What are the reason for the showing the anomalous behavior? Okay, so we will see here reasons for reasons for showing mm, reason of showing reasons of showing anomalous behavior, anomalous behavior by lithium are first is the smallest, first is the smallest size in group. Another is the most electronegative, or you can say or least electropositive positive in group. And last one is the absence of d orbital. Okay. These are the three reasons why they show anomalous behavior. On means to say that lithium, why so anomalous behavior? These are the reason: the smallest size in group, most electronegative or least electropositive in group, and absence of d orbitals. All these regions are similarly shown by the beryllium, boron, carbon, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. कहने का मतलब है कि जो भी एनॉमलस बिहेवियर का रीजन है लिथियम के लिए,
जिस कारण से लिथियम एनोमलस बिहेवियर शो करता है वही सारे कारण जो है बेरिलियम के एनोमलस बिहेवियर शो करने के लिए है, बोरान के एनोमलस बिहेवियर शो करने के लिए है, कार्बन के लिए है, नाइट्रोजन के लिए है, ऑक्सीजन के लिए है, फ्लोरीन के लिए। तो इसके लिए हमें कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो वो चीजें हमें क्या है लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। अब ये तो हो गया कि किस कारण से लिथियम एनोमलस बिहेवियर शो करता है। अब हम ये देखेंगे व्हाट आर दोज एनोमलस बिहेवियर ड्यू टू दिस रीजन। वो कौन कौन से एनोमलस बिहेवियर है जो इस कारण से लिथियम शो करता है। ये जो कारण दिए हुए हैं इस कारण से लिथियम शो करता है। ओके, तो इसको इरेज करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट, as a result of these reasons, as a result lithium so okay, so as a result of these result of anomalous as a result of as a result lithium shows following anomalous properties. Properties from from other alkali metals, okay, from other alkali metals. अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो ये शो करते हैं अदर अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो फर्स्ट है लिथियम इज हार्डर देन lithium is harder than other alkali metals due to strong metallic bond ओके। दूसरे जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, उनको हम नाइफ से काट सकते हैं। अब ये जो लिथियम है वो अपने फैमिली के अदर मेंबर से ज्यादा हार्ड होता है, तो उसके पीछे रीजन है कि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है। अब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के पीछे क्या रीजन है, वही साइज का छोटा होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा होना, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं lithium. Next one is the lithium combined with oxygen O2 to form
form monoxide Li2O, while other forms superoxide and peroxide, superoxide and superoxide, MO2 type, and peroxide, M2O2. ओके, तो एक ये हो गया कि जब ऑक्सीजन के साथ अल्कली मेटल कंबाइंड होते हैं तो लिथियम को छोड़ करके बाकी जितने हैं, लिथियम को छोड़ करके बाकी जितने हैं वो सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाते हैं, जबकि केवल लिथियम है जो मोनो ऑक्साइड बनाता है, केवल लिथियम है जो मोनो ऑक्साइड बनाता है, बाकी क्या है कि सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स react with nitrogen. Lithium, third one is the lithium react with lithium unlike other alkali metals react with nitrogen into to form nitrite, to form nitrite, nitrite. Okay, Li plus N2. Okay, forms nitrite. 2Li3N. ओके, तो यहाँ पे एक दूसरा डिफरेंट हो गया, अनलाइक, लाइक नहीं अनलाइक। लिथियम जो है नाइट्रोजन से अल्कली मेटल, अदर अल्कली मेटल की तरह से रिएक्शन नहीं करता है, उसका रिएक्शन जो होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे नाइट्राइड बन जाता है, ये क्या है, लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड। ओके, लिथियम नाइट्राइड। ये हो गई तीसरी एनामलस प्रॉपर्टी। ओके, और नेक्स्ट वन lithium, fourth one is lithium carbonate, lithium carbonate CO3, lithium fluoride and lithium phosphate Li3PO4 is insoluble in water, insoluble in water, but other alkali metal carbonates fluorides
and phosphates. Phosphates are soluble in water. Okay, soluble in water. And next one is the lithium carbonate decompose to give carbon dioxide and lithium oxide, while other do not so. Okay, lithium carbonate. Lithium carbonate. Next is lithium carbonate decompose to give lithium oxide and carbon dioxide, while other alkali metal carbonates do not give. ओके, तो दूसरी कार्बोनेट डिकम्पोज होगी इस तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड नहीं देते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ जो है एबनॉर्मल बिहेवियर। और इन सारे एबनॉर्मल बिहेवियर के वही 4 रीजंस हैं। ठीक है, lithium nitrates on heating. Next one is the lithium nitrates on heating with oxygen O2 give NO2 and Li2O. Okay, while other nitrate while other alkali metal nitrates do not give as NO3। ओके, तो लिथियम नाइट्राइड ही एक ऐसा है नाइट्रेट ऐसा है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो NO2 और Li2 वो देता है, बाकी के जो होते हैं इस तरह से रिएक्शन नहीं देते। तो ये सारे हो गए हमारे जो है कि लिथियम के एबनॉर्मल बिहेवियर, जिसमें हमने पहला क्या बताया, पहला बताया कि हार्डर होते हैं। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से। दूसरा जो है कि लिथियम की प्रॉपर्टी हमने ये बताई कि जो लिथियम ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के मोनो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मोनो ऑक्साइड बनाता है। और जबकि दूसरे अल्कली मेटल हैं वो अल्कली मेटल्स या तो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं और या तो जो है कि पर ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि ये मोनो ऑक्साइड बनाता है। इसके बाद हमने तीसरा देखा कि लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन दूसरे अल्कली मेटल की तरह से नहीं करता है,
जैसे दूसरे करते हैं, ये लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना देता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट की बात करते हैं, जब डिकम्पोज होता है तो ये चीजें देता है, लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बोनेट। लेकिन दूसरे एल्कली मेटल इस तरह से डिकम्पोज होते ही नहीं है। ठीक है। और जो लिथियम नेक्स्ट लास्ट है, लिथियम नाइट्रेट्स को अगर ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो ये हमें NO2 मिलता है और लिथियम ऑक्साइड मिलता है। ओके। लेकिन जो दूसरे एल्कली मेटल नाइट्रेट्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। तो ये सारा हो गया लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर। और इस एनॉमलस बिहेवियर के पीछे 3 रीजन है। एक तो साइज का छोटा होना, दूसरा ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा होना, और तीसरा जो है कि डी ऑर्बिटल का एब्सेंट होना। ठीक है। इसकी वजह से इतने एनॉमलस बिहेवियर लिथियम शो करता है। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी लिथियम की और भी है, वो है डायगोनल रिलेशनशिप विद द मैग्नीशियम। ओके। अब एक पॉइंट यहाँ पे जुड़ जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप। ओके। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? जो सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स so similarities diagonally. Okay, diagonally in periodic table. This is known as diagonal relationship. This is known as diagonal relationship. डायगोनल रिलेशनशिप। जो सेकेंड और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो डायगोनली जो है कि एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करते हैं, और वो सिमिलैरिटी के जो डायगोनल पे होती है, तो इसलिए इसको हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पे जो लिथियम है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ। ठीक है। मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में सेकेंड ग्रुप में है और लिथियम सेकेंड पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में है। ठीक है। ऐसा रिलेशनशिप होता है, जैसे कि ये है, ये हमारा सेकेंड, ये फर्स्ट और ये थर्ड पीरियड है। ये हाइड्रोजन है, लिथियम है और सोडियम है, और यहाँ पे बेरिलियम है और यहाँ मैग्नीशियम है। तो ये इस तरह से सेकेंड और थर्ड पीरियड में सेकेंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट शो करते हैं। ठीक है। ऐसे ही इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या 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 सिमिलरिटी है इनके बीच में, ये फटाफट हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसको नोट कर लिया जाए। हो गया। ओके, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं हम।
अभी हम लोगों ने डायगोनल रिलेशनशिप की डेफिनेशन जान ली, जबकि हम लोग क्लासिफिकेशन में ये जान चुके थे। अब यहाँ पे लिथियम लिथियम सो डायगोनल रिलेशनशिप with magnesium, ओके, मैग्नीशियम मैग्नीशियम के साथ ये रिलेशनशिप शो करता है, ओके, मैग्नीशियम। अब क्यों शो करता है, कैसे शो करता है, ये हम लोग देखेंगे। एंड रिजेंबल्स ड्यू टू एंड their resemblance is due to charge by radius ratio, is due to, or you can say due to similar polarizing power, polarizing power, that is पोलराइजिंग पावर क्या है, आयनिक चार्ज अपॉन आयनिक रेडियस, ओके, ये है पोलराइजिंग पावर। ये क्या है, पोलराइजिंग पावर है, ठीक है, ये हमारा है पोलराइजिंग पावर, ठीक है, दैट इज आयनिक चार्ज एंड आयनिक रेडियस। ये चीज लिथियम और मैग्नीशियम की सिमिलर है, ये सारी चीजें क्या है, लिथियम मैग्नीशियम की सिमिलर है। अब क्या क्या सिमिलरिटी है, अब वो भी देख लेते हैं। सिमिलरिटी का कारण क्या है, हमने देख लिया कि आयनिक चार्ज और आयनिक रेडियस रेशियो जो है वो दोनों का सिमिलर है, ओके। अब इसको इरेज करते हैं। अब वो क्या क्या रिजेंबल करता है ये भी हम देख लेते हैं कि रिजेंबलेंस का कारण क्या है। कारण हमने जान लिया, लिथियम रिजेंबल विथ magnesium in following okay in following respect, ओके। फर्स्ट वन, लिथियम और मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नियर अबाउट सेम, ओके। पहले हम एटॉमिक रेडियस से देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इज 1.30 और 1.31 एंगस्ट्रॉम, while the atomic radius of magnesium is 1.34 angstrom, nearly they are close, okay। atomic radius of lithium radius of lithium is 1.31 angstrom, which is very close to the
which is very close to atomic radius of magnesium Mg, or that is 1.34 एंगस्ट्रॉम. ओके, तो ये हमने प्रॉपर्टी देख ली लिथियम की. पहली पहली हमने प्रॉपर्टी देखी. आज के लिए इतना ही. कल हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कि सिमिलर है. ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो. ओके, नेक्स्ट डे वी विल मीट.